দল কমলে শ্রী রাধা গোবিন্দ রাসলীলা করে সহচরী সঙ্গ হেরিলে নয়নে তবে প্রেমানন্দ হেরিলে নয়নে তবে প্রেমানন্দ নির্বাণ মুক্তির সহজ সাধনা If you don't clap immediately and take a little time, I'll be more happy. Thank you. It was so beautiful. Your music always takes us to some intangible area, very difficult to, explain in words. But what I want to ask you, and what I always heard when I go through your music, that you have a very distinctive style. Even I can say you have a gharana of your own. So, and which is an amalgamation of folk music and classical music. There's a profound effect of raga sangeet in your music. If you can elaborate a bit of that, because this kind of baul music we don't hear from any other baul. Only from. Okay. So, if we look at the kind of style that I'm following, this is from my Guru Parampara, and that's from a style that came from the Janamo Marono, the one you heard. It came from Shashanka Gosai, and what he told me that in the old time, the bowls they used to sing very slowly because we have a anga in the Padavali Kirtan, which is the Vaishnava style, where you have very long sections of rhythm. So you divide the rhythm in very slow beat, and sometimes they have 52 beats, sometimes they have 16 beats, sometimes they have 21 beats. So like this they prolong the time. For baul we had only one ektara and just one drum. This was the Adi baul. Adi baul means the first, the ancient way of singing baul. Then other instruments came. So when the baul is singing with this dugi and ektara, he cannot have the mir or the prolonged swara, because these two, both the instruments cannot have mir, because this both are kind of drone instrument. It can give rhythm, and ektara gives a
rhythm with a stable pitch. So what they had to do is with their movement, body movement, and with their voice, they had to prolong the time. The bowel singing is not only singing, it has the body movement in it. So, and is a very specific way of moving the body, which you learn from the guru. There are faster songs, there are songs that is little slower, and there are list long songs. So these long songs, somehow it got lost over the time. So when I met my Guruji, I saw him when he first time he was performing in Kala Bhavan. He was doing the Kaliya. You remember? I think Shucheta remember the Kaliya was Yes. very long, prolonged, and his rhythm was suddenly he danced, and suddenly there is pause and takes his voice for a long. So this was the style of the bowl. But then what happened is that it went through changes, and then many more instruments came. And as we are talking about, like when many people come in, then you have to keep up with the others. And so it became more like an orchestra, folk orchestra, and the song got more structured in a shorter beats. So then we lost the ancient style in that way. So what came up to us is also the exposure, I feel, because some of the bowls still sing in this way. If you go deep into Bangladesh, in the Kushtia area, or even in Sylhet, you can find very rare ragas, very rare rhythmic pattern in the bowl song. So it's enormous, this knowledge that is there. But we got used to listening to similar kind of tune, like Bhairavi tune, and that same 6 beats, 8 beats, it became the normal thing. So then we started thinking, okay, bowl has only this pattern, but it's not so. Just because we didn't have the exposure, we have a lot of pattern. And there is each district of Bengal and in Bangladesh, they change their style of singing according to the space, geography, and the things that exist around. For example, if you go more into Kushtia Anchal or Dhaka Anchal, where there is more water, there is one way of singing is Bhatiyali. So Bhatiyali has a rhythmical pattern which is like a wave, very Shona Bondure. The voice is like a water; it moves like water. And then if you go more towards Bakura, that's where Sanatan Baba comes from, you will see more the Vishnupur Gharana Dhrupad had some influence into that. For example, Har Pire Matiya Shankara Pire Matiya. Then you go to Purulia, there is the Jhumur, which is the Bairagi, Rag Bairagi. Dena, 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 lo. See, immediately everything, the raga is changing, the rhythmical pattern is changing. So I was always looking for more and more diversity and how I can incorporate it, being absolutely solo and bring it in the body with just Dugi and instrument, Dugi and Ektara. And it eventually gave birth to something which my Gurujis were already doing, Sanatan Baba was doing, and Shashank Goshai was doing, but it took another shape because I do not know why, but if you really look carefully, each of the bowl, even though they sound alike, but they have very distinct characteristic when they sing. The way when you'll hear a bowl, for example, I don't know, I think if Kanaida is singing, it sounds like any other song, but Yes. he has a very specific style. Nobody can sing like Kanaida. There's some sweetness, some special in him. Again, when Devda is singing, Devda has another style, So each bowl has built their own style, even if they came from their guru parampara. And not every bowl has the singing and dancing. It's only certain school.
So this school that belong is Vaishnav Darvish. They used to dance. Hmm. So it depends. Like the fakir of Bangladesh, they don't dance. They play the dotara or they play ektara or khonjoni, and they stand and sing. So each school is different, but definitely, if we look deeply, we can find diversity in it. And I'm always researching and finding old ragas as much as I can. So I go through the old Padavali book, old Charyagiti book, and I read the names of the raga and try to find the link. Some of the ragas are completely lost, but you can at least guess how it was, and I try to incorporate. Yet I don't want to be a classical singer because the sound of the baul is very different than what we manifest with the classical music. They are different style. So baul is a way of telling a story, and there is a complete, it's also like a singing theater. It is also like a dance. It is everything together. So to find a beautiful balance, I feel. I think I have spoken a lot. Now you say. Yeah. We can hear to you for many long minutes because so beautifully you explained to us this thing, because I think many of our viewers not known about your distinctive gharana before, because today you have given a very good explanation of this. We can hear more of you, but we have a time constraint, so I think we'll play the next song, Chat Sindhur Pare Sei Bindudhar, and please explain the song to our viewers. This song is written by Haure Goshai, and he is one of our very important and very revered Mahajan. We call the Padakartas or the poets as Mahajan, the great souls. So and Haure Goshai was from Bardhaman district. And actually these songs are written by his student, who was a very high scholar in Sanskrit and everything, but he put his guru's name as Haure Goshai. The person who was written, he was a student of Haure Goshai. This is a song that explains about the inner yoga of the baul. I will tell in few lines, very short. Beyond the sea of the self, this body is like the ocean. So beyond the sea of the self, there is the island of Bindu. So Bindu is a point in the body, the spiritual body, that's the yogic body, where there is the place of the light. We said that something that illuminates us. There is the place of the Bindu. But the beginning is in this very root, Muladhar. So if we say that the light is here, but the beginning comes from the lower part of the body, that's from the Muladhar. So look, oh mad one, the wisdom is in this human body. So what Baul say is that the whole universe, jaha ache bhande, jaha dekho brahmande ache ei bhande. It means whatever you see in the universe, it exists in the body. So this is a small explanation of this song. It is much longer and much more deep, but I think this is okay. Video started.
See, for Baul songs are Mahamantra. When a Mahajan or a Mahatma is in the deep realization, they express their experience for us through the songs, through simple songs. Why they make it into simple songs? So that music has no barrier and music can touch anyone's heart. So when this deep knowledge, if just somebody just keep on speaking about it, we might get bored. But if someone sing it to us, we will be very touched by it. Maybe we will have a better capacity of listening to what the truth is spoken to us. So these wisdom songs, they mostly reflect the inner world of a Baul sadhak. And these songs, they hold a deep philosophy in them, yoga in them, bhakti in them. And by singing it many, many times, one is contemplating on the song, the meaning of the song, meaning of the poetry. So it vibrates inside the body. Again, one who is singing is naturally meditating on the song, but one who is listening is also meditating on the song. Because listening is also a form of meditation. So it works both ways. And that's how you feel touched by the Baul songs. Even if you don't understand the meaning, you don't know the language, but you feel that something has touched you deeply. What is it? It is the truth, that devotion, and that love that is carried in the heart of the Baul. We may not know in depth all about yoga or all about the aspects of the thing of bhakti and singing everything. It's not necessary also. But the sound that has come out from a Baul, it has come out after many years of sadhana. So in a way, it has some perfection in it, some purity in it, and that is what is touching you. So my Guruji used to say that until you realize, or unless you realize the meaning of the song, you cannot convey that meaning to the other people. If you understand, then your listener also will understand. For that, the Baul has to take a long process to internalize the song. For all, it is for Baul, for Sufis, for everybody. To bring the real rasa or the essence of the Baul song, one has to contemplate on this song for many, many days, many, many times. Then it will come out as a sahaj. So when you meditate or do dhyana on your sangeet, your life transforms, your breath transforms, your body transforms, and it becomes light. We say that it is a way also to experience, uh, aprakrito, aprakrito deho. Aprakrito means a body that is made of all five elements, which is worldly elements, but there is a kind of transparency in that body which can hold the divine energy. So through singing, that transformation can happen. And that's how music becomes a yoga and Baul becomes a Nada Upasaka. Here the sound is the seed. People do different kind of upasana. Like some people do homa, some people do japa, some people do, retreat, they take vipassana, different things. Baul sing and dance. And the sound is the seed of the meditation. That's why it is very deep. It is not only music. One has to completely give oneself into this. Then only that song will ripen. Such a deep philosophy, but you explained it so easily, mainly for our student viewers. So it's very easy for them. It's become now easy. It's not possible to know
but at least they get an idea what it is. Charuji, I'd like to ask if you want to ask something. After the music, sorry, I was on mute. We'll ask the question after the music. Next music. Okay, so the next song which we are going to play is Hori Khelche Sri Hori. So please explain a bit about that song. Yeah, so this is a song written by Rupchat Pokhi. He's not really a baul master, but he was a Kobigan, the instant poetry fight that in Bengal is famous for. There are two different poets come and they converse on two different aspects. One is, opposing the other. So Rupchat Pokhi was very famous for that. And he was in the early 19th century in Kolkata and surrounding areas. He wrote many songs because he was a devotee of Radha and Krishna. He wrote many songs on Radha and Krishna. I choose this song particularly because in this concert which we are sharing of IIM in Kolkata, which was, I think it was my first Speak Mackay concert there. So then this composition I did, and it was right after Holi or something like that. And also I choose this because this composition is very joyful. Do you want to hear the whole song? I will just make a gist of it. It is the poetry, how it goes. You can say. Yeah. Hold Who on. is this? Who is this? His skin like dark clouds, stealer of Gopi's heart. His healing hands hold an enchanting divine flute. His moon-like face rains always the diamonds of his lovely smile. It is midday. Though it's spring, the sun is burning. Sakhi, I see his forehead covered with sweat. If I was not concerned for my family's honor, O Sakhi, I would have wiped away that sweat with my own sari. It's spring, Sakhi. It is the divine spring. Krishna is playing with colors and gulal. There is Radha beside him. The gopis of Vrindavan shower color on them. They make a swing of wildflowers. The Vrindavan is red. Its earth is red. The Yamuna river is red. The hills and roads are red. Birds, animal, trees, gopa and gopis, all are red. Surrounded by all his favorites, Krishna dances with Radha and unites with unconditional love in the heart of the disciple, heart of the gopi. Dualities dissolve to celebrate the eternally new mate. Rupchat Pokhi. Yes, let's go to the song. Because I feel that you are really calm down, as if you are really sitting here to listen to the music, and that's so good for people like us.
শুধু মুখে মধুর হাসি শুনি কটাক্ষে চায় না যায় দুটি আখি খঞ্জন ঘেমেছে জল বদন খানি সই লেগে দারুণ রবির কিরণ দে কুলের শঙ্কা যদি না থাকিত তবে বসনে ধাকিতাম অবিধু বদন সখী বলি হরি খেলছে শ্রী হরি সাথে রাধা প্যারি হরি খেলছে শ্রী হরি সাথে রাধা প্যারি হরি খেলছে শ্রী হরি কুঙ্কুম ধূম রায়ঙ্গ হরি কুঙ্কুম ধূম শ্যামঙ্গ ঘেরি হরি খেলছে শ্রী হরি সাথে রাধা প্যারি হরি খেলছে শ্রী হরি পুষ্পমালা ইন্দোলা পুষ্পমালা ইন্দোলা সাজায় ভোজনালি রায় শ্যাম অনুপম রায় শ্যাম অনুপম দলে মধুকরি হরি খেলছে শ্রী হরি সাথে রাধা প্যারি হরি খেলছে শ্রী হরি নব নব সখী আরে জুয়া জানা গলার সহিত আবিরি ওই রসময়ী শ্যামের বামেতে ওই রসময়ী শ্যামের বামেতে ওই যুগল রূপ রস আর নয়ন ভরি হরি খেলছে শ্রী হরি সাথে রাধা প্যারি হরি খেলছে শ্রী হরি ওরে আবির গুলাল বৃন্দাবন লালে লাল লালে লাল হলো যমুনার বাড়ি
really like Parvati ji magic 2 years. And the next question which I would like to ask you is about your Sanatan Siddha ashram and the classes which you conduct out there. So we have classes. I also travel a lot. So I am the only teacher right now. There will Oh, be more teachers with me who will be teaching, and then it can get into a more regular classes. Right now, when I am here, I take something like couple of weeks or a week, and all the students of me, they come and they join me. We live together and we practice. We have a routine. So this is the way I have been teaching. But in the lockdown, we are not conducting these things. But we have, through online Zoom, we are keeping in contact and checking on each other how we are practicing. And except one of my student who is here, he's learning with me. It is a very traditional Guru Shishya Parampara Gurukul. Uh, Only once in a year we have a retreat when we open it up from for anybody who is interested in Baul tradition, and they can come and immerse themselves in music, dance, and philosophy of the Baul and the practice of the Baul for 7 days, so they can have more deeper understanding of the Baul tradition. Then I have small classes with the children from surrounding village, and they practice yoga and music here. So this is basically my our rhythm right now. so, sorry, huh? You're saying something? So I said I also teach like traveling, and I go and teach other places also. Uh, but I would like to more concentrate in the ashram, and everybody can come here and practice. Okay. Yeah. So the next question is, how has your journey been with Spic McKay, and what is the message you would like to give to the young volunteers, the youth of today? The work of Spitmake has been very significant for our time. And it is actually, when it started, that was the right time when we really had to inspire the youth about and make them realize the depth of our traditions. And I met Kiranji and Spitmake long time ago in 2000 in Delhi, and then there was a long gap. Then again, with the videos that we played in IIM Kolkata International Convention, that's where I came for the first time after 2000 and joined fully. It was a very memorable experience in Kolkata. I was with so close with so many great people, and we had so much discussion, so we came to know so much from each other. It was sharing with the students and also between the masters. They were learning from each other, and it was so enriching to be with Bahauddin, to be with Kapila, and there was you know uh, Rashid Khanji, who is the eldest. He came and he performed. Oh my God, I cannot even remember. And I'm just remembering all this. All night we are sitting through and very intense, like one after the other. Music is going on, and you get intoxicated in your head. And even if you go in the room, you are in the soothing bed of music. Even in your sleep, you can hear music. It's so enriching. And in the morning, we're getting up with Bahauddin and Pelba and doing Dhrupat Sadhana. Manjari ji was there. We had wonderful chai time with Manjari ji. Came to know so many things. She had such wonderful Hindi. And then I continued with Speak Mackay through small concerts. Like in Orissa, I went, and Pune. I went to Pune, Maharashtra, and some other places. In Kerala also I did. And it was, and Delhi also. Delhi also I went. And we went to the schools, and the interaction with the children, it was very pure, because they don't have any judgment in their, and they're like blank open heart, and they're ready to receive what comes.
I had and also in Dehradun that I went. Dehradun, that was a great experience for me. So, uh, through these interactions, I feel that many children I met. One time I was passing through an airport, and this person who was in the Indigo officer, he came and said, Parvati man, do you recognize me? I was in that Speak Mag school, you came. And I was like, oh, okay. So I get to meet many people like that. And it's so wonderful. They grow up and they Yes, remember. that's how you touch lives. You touch so many lives. And he said that after that, even though he had to continue with his whatever, but he kept on practicing yoga, and he meditate every day, he told me. So he kept something from that meeting. So that's lovely. So Speakmake is actually not only for people where the artist give their knowledge and art. It is also for the artist who receives a lot of beautiful and positive feedback to their work. And in the conventions, it's really special when we get to meet and stay together for some days. It's wonderful. Yes, absolutely, absolutely. And indeed, I was intoxicated too when I heard you first time at IIM Kolkata. I could not understand Bengali a bit, but there was something, in your music which touched me, and I could not just understand anything, and tears were just rolling down my eyes. So I'm sure there were so many people you have touched lives, and thank you so much for coming and giving us your time and sharing such a beautiful moment. And of course, behind the camera, we were talking to you, and you had such beautiful memories to share, and beautiful, sharing is so beautiful. And thanks again, once again. And over to you, Suchita. You would like to say something? Thank you so, so much for joining us today. We could talk and talk and talk, but there is a time thing. But again, it's our pleasure on behalf of entire Speak Market team. I'm thanking you to come with us here today live, and we'd obviously like to see you in many more programs in the coming years. My accept my Yes. Jai. pranam. Thank you for coming here. Thank you, and my pranams to Jai you, Guru. ma'am. Jai Guru. Jai Guru. So there's an announcement to make to all the audience viewers who are watching live here. We start the next program in another 2 minutes. So till then, please keep doing your exercises, your palm exercises, and please be a little patient for the next 2 minutes. We would start with the next program with Tijan Baiji. Thank you and namaskar.
स्पीक मैके के हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से आदिवासी अंचल से उठकर अपनी कला को न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह से पहुंचाया कि आज जब कभी भी लोक संगीत की बात होती है तो उसमें पंडवानी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे बीच में मौजूद हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित पंडवानी गायन का पर्याय बन चुकी श्रीमती तीजन बाई। हम तीजन बाई जी का स्वागत करते हैं। हम उनसे अपनी बातचीत शुरू करें इससे पहले हमारे स्पीक मैके की कार्यकर्ता अनन्या जी से आग्रह करूंगा कि वे श्रीमती तीजन बाई जी का परिचय हम सबके साथ साझा करें। अनन्या जी आइए। अनन्या जी आपको आना है परिचय के लिए। Ananya, please unmute yourself. Ananya, please unmute yourself. Now can you hear me? Yes, we can hear you now. जो भी सीखा जीवन से सीखा, गाना मुझे बचपन से पसंद है और आज भी वही कर रही हूँ. Whatever learned, I've learned from life. I love singing since childhood and till date I'm doing so. These are the lines I remember she said when I met her in the back. She's not just an artist but a bundle full of inspirational stories. Whatever she says has an impact. Let's welcome 74-year-old Tijan Baiji to Speak My Anubhav series. Tijan ji, who has been enacting tales from Mahabharata with musical instrument, ek tara or tambura in one hand and sometimes a kartal in another. She might not have gone to school, but whatever lessons she has learned as a kid has earned her name and fame. Tijan Bai को अपनी उपलब्धियों का जरा सा भी गुरूर नहीं है. वह कहती हैं कि मैं आज भी गांव की औरत हूँ. दिल में कुछ नहीं है, ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं. मैं सभी से एक जैसे ही मिलती हूँ, बात करती हूँ, बच्चों बूढ़ों के बीच बैठ जाती हूँ. इससे दुनियादारी की कुछ बातें सीखने को मिलती हैं. तीजन जी, आपकी यही बातें हमें प्रेरित करती हैं और हमेशा करती रहेंगी. You will forever be an inspiration for all of us. Tijan Bai sings Mandavani, traditional performing art of Chhattisgarh that includes stories and song about Pandavas from Mahabharata, which was compiled by Sabal Singh Chauhan. She has been a graceful figure. Her tattoos are stacked with sparkling glass bangles almost to the elbows, a dash of sindoor in the parting of her plaited hair. Long gold jhumkas and a blood-red bindi always completed her ensemble. As you see, she's a woman with charm and undying spirit. तीजन जी ने अपना पहला कार्यक्रम 13 साल की उम्र में किया था. The story of Tijan Baiji's personal journey is almost as compelling as her artistry. आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके जीवन के बारे में और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची. तीजन जी, आप बताइए. कैसे मुकाम तक पहुंचे पता? मैं बचपना से लेके ऐसा तो कर्मा दरवाजा गाती रही. कुछ दिन के बाद मेरे नाना से मैंने पंडवानी सुनी और वो सुनने के बाद उसको कहानी की तरह सुनने के बाद उसको अपने तरीके से तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ. अब मेरा काम ही वही था, काम करना, जगह जगह प्रोग्राम देना, सबको सुनाना. ऐसे करते करते गई. और हर जगह विजय प्राप्त करती थी.
मेरा कर्तव्य था, जो मुझे क्या करना था, इसलिए मैंने की। और हर प्रकार के मेरे ऊपर तकलीफ आया, पर मैं तकलीफ के ओर ध्यान ना देकर अपना काम करती रही। जी मैम। हाँ जी मैम। सन 1980 में उन्होंने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरिशस की यात्रा की और वहां पर प्रस्तुतियां दी। She has been awarded the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan by the Government of India. Also the Sangeet Natak Academy Award in 1995 and many other national and international awards as well. तीजन जी, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा था और आपको ये अवार्ड पाकर कैसा महसूस हुआ? सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड पुरस्कार कौन से रही से और पाक कैसे लगी? अब मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण पद्मश्री, और पद्मश्री पहला पुरस्कार हमको मिलने के बाद हमें तो मालूम भी नहीं पड़ा कि ये पद्मश्री है भी। हमारे नाम से चिल्लाते थे, तीजन भाई पद्मश्री बधाई हो, तो हम चिढ़ जाते थे कि हमारा नाम तीजन भाई है और पद्मश्री क्यों लगाते हो। तो वो लोग बोले कि पद्मश्री अवार्ड आपको मिला। 14 साल के बाद फिर हमको पद्म भूषण मिला। अभी हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी तो पद्म विभूषण मिला। मैंने सरकार के तीनों अवार्ड लगातार हमको मिला है और वो चीज देख के हम अत्यंत खुश है। हमने बहुत मेहनत किया, सच में उसका फल हमको भगवान ने दिया, ऐसे हमको लगता है। धन्य मैम। The Guru Shishya tradition has always been an important part of India and Spikmake has always believed in it. आपने भी काफी शिष्य हैं आपके, आपका अपना पोता भी आपसे सीख रहा है, तो आपका क्या कहना है गुरु शिष्य रीति पे? बहुत जन सीखा थे तो साथ में, और तो पोता भी बोला तो उसके बारे में क्या कहना चाहते? मेरे साथ में कम से कम 150 बच्चे सीखे, लड़की लड़का करके। उसमें मेरा पोता भी सीखे हैं और 2-4 स्टेज अच्छी जगह काम किया। हवाई अड्डा में, स्टील प्लांट में, नागपुर में काम किया और गांव में भी काम किया और 2 आकाशवाणी भी में काम किया, उसमें भी पास हुआ। तो इस बात सुनकर धीरे धीरे वो जो बढ़ रहे हैं उसको भी देखकर हम अत्यंत खुश है। और हमारे सिखाए हुए बच्चे भी अपने कार्यक्रम दे रहे हैं और उस हमारे पास बोलते हैं फलाना जगह काम किया, वो जगह काम किया। तो बच्चों का जो बात सुनकर हमको अत्यंत खुशी लगती है। हम कहते हैं कि कार्यक्रम धन्य मैम। स्पिकमेके से जुड़े हुए आपको काफी साल हो गए और ये सफर आपके साथ कैसा रहा है? आपने यहाँ परफॉर्मेंसेस दी हैं अलग अलग जगहों पे, आपने कई बच्चों को सिखाया, तो आपका ये स्पिकमेके का सफर कैसा रहा है? इतना एक साथ जुड़े हुए कैसे लगी? अब देखिए, इस वीक में जब से शुरू हुआ और हमको बताया सेठ जी ने कि हमारे इस वीक में बच्चों के बीच में काम करना है कि बाद में मेरे से मिलना है। अभी थोड़ा मैं तकलीफ में हूँ। तो बोले कहाँ मिलोगी? तो कह रहे हूँ जहाँ ठहरी हूँ आप मिल जाना। तो हम उससे बात किए
हमको समझाने लगे कि बच्चों को समझाना है, अपने परंपरा को दिखाना है, और बच्चों को ये कौन से कला है ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारे स्कूल में यदि काम कर देती और इस महीने में जुड़ जाती तो अच्छा होता। हमने वो इनकार नहीं किया, हम तैयार हो गए कि ठीक है हम कार्यक्रम देने के लिए तैयार हैं। तब से अभी तक हम बच्चों के बीच में जुड़े हुए हैं और इस महीने में काम करती आ रही है। तीजन जी धन्यवाद, आप हमेशा से ही हमें प्रेरित करती आई हैं और ऐसे ही अगले आने वाले सालों में करती रहें। अशोक जी नमस्कार। आप अशोक सर। Ashok sir, please unmute yourself. ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, सब वीडियो भी ऑन कर दी। ठीक है। हाँ, राम जोहार तीजन भाई जी, मैं अशोक जमनानी आपसे कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जानना आपसे यह चाहता हूँ कि 13 साल की उम्र में आपने पहला कार्यक्रम दिया, उस समय वह जो दौर था तब जो लड़कियां थी उन्हें खड़े होकर के गाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, जो कि कापालिक शैली मानी जाती है पंडवानी शैली में। उन्हें वेदमती शैली के अनुसार बैठ करके गाना होता था। लेकिन आपने कहा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, जैसे लड़के गाते हैं जैसे मर्द गाते हैं, मैं भी उसी तरह गाऊंगी। और आप पहली कलाकार थी जिन्होंने खड़े होकर के, आप पहली महिला कलाकार हैं जिन्होंने खड़े होकर के पंडवानी को पेश करना शुरू किया। तो इतनी छोटी उम्र में आपको बराबरी का ये ख्याल कैसे आया, और आपने जब पहली बार ये इस तरह की प्रस्तुति दी तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? 13 साल की उम्र से तेरा लड़की मला प्रोत्साहित करा की पंडवानी गाने का वो कैसे? देखिए 13 साल की उम्र में जब हम पंडवानी गाना शुरू किए तो हमारे लिए तो अनेक प्रकार की बात आई। और बाद में उन लोगों को पता चला कि सच में लड़की भी कुछ कर सकती है। तो हमको देखते देखते उन लोगों को भी मनोबल बढ़ गया। अब उन लोग भी अपने कार्यक्रम देने लगे। ये बात सुनकर हम पहले भेदभाव था लड़की लड़का में, अब भेदभाव नाम चीज ही नहीं है। लड़का भी काम कर सकते, लड़की भी काम कर सकते हैं, मिलकर वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं और कर रहे हैं। हमें पूरा करना। हम एक बात और जानना चाहते हैं। थिएटर के एक बड़े कलाकार थे हबीब तनवीर जी, उन्होंने आपको सुना और उन्होंने आपका परिचय दुनिया से करवाने में आपकी मदद की। तो हबीब तनवीर जी के साथ आपका परिचय कैसे हुआ, और उनके थिएटर का और आपकी कला का जो समागम हुआ उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे आज के दर्शकों को कुछ बताएं। हबीब तनवीर सर के साथ किसी मुलाकात हुई से? वो नामगांव से हुआ था हबीब तनवीर से मुलाकात। उसके बाद हमारे बहुत कोशिश किया वो अपने साथ में लेकर हमको अकेले विदेश में चले गए। हम कहे भैया हम नहीं जाएंगे, हमारी क्वालिटी पर हम इनकार करते गए। पर भी हमको दिल्ली में ले गए थे और दिल्ली में वहाँ वर्कशॉप लगा रहे थे। हम उसके वर्कशॉप में बैठते थे और हमारा जब काम आता तो हम पंडवानी गाते रहे। तो अशोका होटल के नीचे भाग में तो हम केक देने के बाद कोई पेपर हमको नहीं छोड़ा कि बहुत सुंदर बात पंडवानी छत्तीसगढ़ से आई है। जब ऐसे बात सुने
तो सबके मन में थोड़ा दुख होने लगा कि ये लड़की जात है, इसके लिए इसलिए इसका नाम ज्यादा ऊंचा हो रहा है। पर हमको कोई परवाह नहीं, हमको कार्यक्रम देना है सो देना है। इस तरीके हमने कार्यक्रम दिए, फिर अपने घर के लिए आए। तब से हम हबीब पंडित के साथ जुड़ने के लिए तैयारी में अपना काम करते रहे हैं। और भाई हमारे पास पूरी पार्टी है तो हम दूसरों के साथ क्यों जोड़े? हम ऐसे कहते हम उसके साथ नहीं थी। हाँ, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि पांडवानी शैली या पांडव गायन शैली एक ऐसी शैली है जिनके नाम के साथ पांडव जुड़ा हुआ है। आपकी जब मध्य प्रदेश की यात्रा हुई थी तब मैं आपके साथ था और मैंने महसूस किया कि आपके पूरे गायन में जो पात्र सबसे ज्यादा उभर करके आता है वह पात्र पांडवों के स्थान पर द्रौपदी का है। तो क्या ऐसी कोई वजह है कि आप द्रौपदी से अपने आप को ज्यादा जोड़ पाती हैं? क्योंकि आपके मैंने जो महसूस किया, द्रौपदी का पात्र जिस तरह से आप प्रस्तुत करती हैं वह अद्भुत होता है। तो द्रौपदी से अपने जुड़ाव का आप क्या कारण देखती हैं और उसे अपने गायन में आपने एक स्त्री पात्र को इस तरह से इतनी ताकत के साथ स्थापित किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पंडवानी है उनका किरदार है द्रौपदी होकर के ते अपन आप में जुड़े हुए महसूस कर उसके बारे में। देखिए, द्रौपदी के दुख और दर्द वो जानकर अभी हमारे दिल भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ वो तकलीफ नारी के ऊपर में आती है। वो नारी के मन में क्या होता है, कितना दर्द होता है। अति चारों तरफ वो अंधेला है, उसको दुर्गति हो रही है, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं रहता। परिवार में भाई परिवार रहते हैं, उसको कोई नहीं देखता, तो उससे कितना दर्द होता है। दर्द होने के बाद भगवान को पुकार कर और ईश्वर को याद करने के बाद किया। ये कहानी जानकर इस चीज को कहकर शरीर में नारी के दर्द तो देकर हमें भी दर्द होता है। जब हमको दर्द होता है वही दर्द को हम जनता के बीच में व्यक्त करते हैं, सुनाते हैं, वही दर्द भरी कहानी को। बस यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा काम है। इसलिए हम द्रौपदी के दुख को अपना दुख समझकर ही काम करते हैं। एक सवाल आपकी प्रस्तुति के सर, अशोक सर, सॉरी जी जी सर, पीछे से शहनाई की आवाज कहाँ से आ रही है इसमें? अरे वो पीछे वो कहीं वो बज रहा था, मैं एक मिनट ये जी अब ठीक है? क्योंकि हाँ, जब शहनाई की आवाज आ रही है ना तो मैम की आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा अच्छा, तो सौरभ, हेलो सौरभ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी निखिल सर। सौरभ, जी, जी, आप ना मैम के पास हेडफोन है? आपके पास हेडफोन? जी सर, हेडफोन तो नहीं है। क्योंकि मैम को ना, मैम माइक से बहुत दूर है, तो मैम की आवाज जब माइक पे आ रही है तो बहुत धीमे धीमे हम लोगों को सुनाई दे रही है वो, तो रिकॉर्डिंग में हमें थोड़ा दिक्कत आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा पास कर दो माइक तो मैम की आवाज पूरी आएगी माइक में। सर, आप लोगों को आवाज कम आ रही है ना तीजन भाई जी की? हाँ जी जी बिल्कुल। अनन्या, आपको आवाज कम आ रही है, सही आ रही है? थोड़ा जोर से आवाज कम आ रही है। अनन्या, जी निखिल भैया, मैं ये कह रही हूँ कि आवाज बहुत कट रही है और रिकॉर्डिंग में तो और प्रॉब्लम होगी फिर। वही तो आपको ये चेक करना होगा बीच बीच में। हमें एक क्वेश्चन भले 2 बार रिपीट करना हो तो मैं जो जहां पे सही कनेक्टिविटी और सारी चीजें मिले वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पास में करो सौरभ माइक, चेहरा और पास में लेके आओ मोबाइल। मैम, तीजन भाई जी थोड़ा सा बात करिए हम हमसे, आपकी आवाज सुनना है हमें, एक बार आवाज समझ में आ जाए। ये द्रौपदी के बारे में बोलूं? हाँ, वो द्रौपदी वाला उत्तर आप फिर से आवाज के साथ बोल रही हूँ।
अब कम ज्यादा हो रहा है, इतने दूरी के बाद मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। अब ठीक आवाज आ रही है। नहीं, नहीं, आप कह रहे हो तो द्रौपदी के साथ काम। निखिल भैया हाँ। आवाज ठीक है, प्रॉब्लम में ना नेट कनेक्शन की आ रही है, तभी आवाज कट रही है। वैसे अब आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। अच्छा चलो यहाँ से स्टार्ट, अभी माइक थोड़ा सा पास हुआ है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वही द्रौपदी वाला सवाल फिर से पूछ लेते हैं उनसे। ठीक है सर। जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मैंने आपकी द्रौपदी से जो जुड़ाव महसूस करते ना, वो फिर से पूछा था। हाँ, मैं बोल रही हूँ द्रौपदी के दुख और दर्द, जैसे उसकी दुर्गति हो रही है वहां बैठे थोड़ा करें, अब उन लोग कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो द्रौपदी को कितना दुख हुआ। सबको याद की, सबको पुकारी, सबको दुख सुनाई, पर भी वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। उस समय द्रौपदी इतनी चीखी चिल्लाई, अंत में भगवान कृष्ण को याद की और कृष्ण जी आकर उसके लाज को बचा लिए। ये कहानी हम जब जनता के बीच में कहते हैं तो हम द्रौपदी की कहानी में पूरा डूब के कहते हैं। अब जब तक हम डूबेंगे नहीं तो जनता को हम सुना कहाँ पाएंगे। इसलिए उनके दुख और दर्द हमें दुख लगता है, दुख तो को हम जनता के बीच में व्यक्त करते हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जब मंच पर तीजन बाई जी होती हैं तो साथ में उनका तंबूरा होता है। जिस तरह से एक पात्र से दूसरे पात्र में तीजन बाई जी प्रवेश करती हैं, वैसे ही लगता है कि तंबूरा भी एक पात्र से दूसरे पात्र में प्रवेश कर रहा है। तीजन बाई जी कभी भीम होती हैं, कभी अर्जुन होती हैं, कभी दुशासन होती हैं, कभी द्रौपदी होती हैं। उसी तरह से तंबूरा भी कभी धनुष बन जाता है, कभी गदा बन जाता है, कभी स्वयं तंबूरा ही रह जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मंच पर तंबूरा आपके साथ एक सह कलाकार के रूप में प्रस्तुत होता है, और आपकी प्रस्तुति में तंबूरे का इतना महत्व कैसे बना, क्या और इसमें आपका अपना योगदान कितना रहा, क्योंकि आपसे पहले के जो कलाकार थे वे तंबूरे को इस तरह से पेश नहीं कर पाए थे। जो तो किरदार करते मनमानी के रस्म में तो साथ साथ जब तुर किरदार बदलते तब तंबूरा हा गदा बन जाते, कभू बाण बन जाते, तो ओहा मतलब तुर साथ में कैसे काम करते कुछ। अब सबसे बड़ी बात बता दूं, तंबूरा के गुण बहुत बड़ा है, क्योंकि मात्र एक बजाने का तंबूरा नहीं है। और वो मेरे साथ में रहता तो उसी को मैंने गदा भी बनाती हूँ, तलवार भी बनाती हूँ, रथ कुदाने के लिए पाक डोर के भी सहारा लेती हूँ, भीमसेन के गदा घुमाकर कौरों को मारने के लिए भी सहारा लेती हूँ। सबसे बड़ी बात गदा है, तंबूरा में गुण है। ऊपर में जो मोर है वो श्री कृष्ण के प्रतीक प्रमाणित, उसमें तार लगा हुआ है, वो माँ सरस्वती के देन है। सबको के गदा ही समझ लो तो 3 पद देवी देवता के उसमें वास है। तंबूरा एक साधारण नहीं है, तंबूरा बहुत बड़े चीज है। यदि तंबूरा मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो मैं कोई काम नहीं करने का मन, तंबूरा रहता है तभी मैं काम कर सकती हूँ, इतना महत्व है तंबूरा। जैसे पहली कलाकार मन हा वतना नहीं दिखा पाती इसकी गदा हरे हरे कैसे करे। देखिए मैं तो अपना कोई बतावे ना बतावे, मैं तो उनके गुण, जो गुण है उसको बता रही हूँ आप लोगों को कि तंबूरा में इतना बड़ा गुण है कि 3 देवी देवता के वास है उसमें। बजरंग बली के वास है, श्री कृष्ण के वास है, माँ सरस्वती के वास है। तो ये इसको साधारण तंबूरा मैं तो नहीं समझती, उसको तो मतलब भगवान के रूप ही मानती हूँ, माता सरस्वती के रूप मानती हूँ, बजरंग बली के रूप मानती हूँ, श्री कृष्ण के रूप मानती हूँ। तो ये तीनों के जुड़े हुए एक ही तंबूरा है। तो मैं तंबूरा के बहुत सहारा लेती हूँ।
अब उनके बिना मेरे काम चल ही नहीं सकते, ना मैं गा नहीं सकती। एक सवाल आपकी प्रस्तुति से जुड़ा हुआ और पूछना चाहूंगा। आप जब दुशासन वध का प्रसंग प्रस्तुत करती हैं तो उसमें एक अद्भुत बात यह होती है कि इस प्रसंग के अंत में जो द्रौपदी हैं वे स्वयं काली का रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें देख करके पांडव और पांडवों की सेना तक घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं ये खड्ग और खप्पर लेकर के काली सर्व विनाश न कर दे। तब कृष्ण को बुलाया जाता है और कृष्ण आकर के द्रौपदी की आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आपकी बहुत प्रसिद्ध प्रस्तुति है, जगदम्बा ला प्रणाम, दुर्गा माई ला प्रणाम। तो यह एक अद्भुत बात है क्योंकि अन्य कहीं स्थान पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि द्रौपदी अंत में इतनी ताकतवर हो जाती हैं और सारे बंधनों को तोड़ करके वे एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आ जाती हैं कि जिसे स्वयं कृष्ण को आकर के जिनकी स्तुति करनी पड़ती है, जिनकी आरती करनी पड़ती है। तो इस प्रसंग को आपने किस तरह से कि द्रौपदी को या स्त्री शक्ति को या नारी जाति को इतना ताकतवर बना करके प्रस्तुत करने का विचार आपके मन में कैसे आया और इस प्रसंग से आप स्वयं को जोड़ करके कैसे देखती हैं? जो दुशासन वध है, द्रौपदी जी जो लास्ट में एकदम गुस्सा हो जाते और मतलब जो नारी शक्ति दिखाते वो लोग कैसे थे, मतलब प्रस्तुत करे कैसे दिखाते? अब देख, द्रौपदी के दुर्गति जब दुशासन ने करने लगा, बाल पकड़ के दरबार में घसीट के लाया, उस समय द्रौपदी में क्या भाई, और जब दुशासन के वध किया और उसका भुजा उखाड़ कर फेंक दिए तो द्रौपदी दुशासन के रक्त में अपने पूरा बाल भिगो के फिर जुड़ी और जुड़ा बांध के कहने लगे, दुशासन 13 साल के बिखरे हुए बाल मैं आज इस जुड़ा बांध कर सुहागिन बनी हूँ। वो समय द्रौपदी के मन गदगद हो गए। ये चीज उसको दिखाई दिया जाता है। तो अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे अपनी संस्कृति से किस तरह से जुड़ सकते हैं और आप जैसे महान कलाकार के स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आजकल के युवा मतलब का बोलना चाहते कि हमारी संस्कृति जुड़े रहे। एक बार हम आजकल के हमारे युवा को हम कहना चाहेंगे, अपने अपने परंपरा संस्कृति में जो जुड़े हुए हैं उसको बड़ा लगन से और लगाव के साथ, प्रेम के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और उस प्रयास में जब बच्चे आते हैं उसके लिए माता पिता भी साथ दें, सरकार भी साथ दे, मीडिया भी साथ दे, तभी वो बच्चे अपने परंपरा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे प्रार्थना है, गुजारिश है और यही हमारी आशीर्वाद है बच्चों को। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से हम सब के लिए इतना समय निकाला। न केवल हम, न केवल स्पीक मैके, बल्कि हमारे स्पीक मैके के संस्थापक, जिन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की एक जिम्मेदारी ली, ऐसे हम सबके आदरणीय पद्मश्री से सम्मानित हमारे डॉक्टर किरण सेठ ने भी आपको प्रणाम कहा है और उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि आप हमारे इस आंदोलन को, अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, उसके लिए डॉक्टर किरण सेठ, स्पीक मैके और हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या, ओवर टू यू। हाँ जी, बस सर आपने धन्यवाद कर दिया। ठीक, तो अब हम उसको कर सकते हैं। प्रणाम करते हैं, सबको कोई आशीर्वाद। थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम बच्चों के बीच में आने के बाद ऐसे लगता है कि कोई कमल के फूल में भौरा गुनगुना रहे हैं। इसलिए हम
ईस्वी पैके में बहुत दिन से हम जुड़े हुए हैं। अब तो हमारी उम्र बुढ़ापा आ गई, हम 72 साल के हैं। नहीं 72, हम 74 साल के हैं। सॉरी 74 साल में कान भी गया, आग भी गई, सारी चीज चली गई, पर भी जनता आप लोगों के प्यार में बनकर हम चले आते हैं। चलो जितने समय हम आपको सुना सकते उतना ही सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे तो हम क्षमा मांग लेंगे। तो चले कहाँ, कुरुक्षेत्र की तरफ। लड़ाई तो कहो या पांडव की है, ज्यादा दूर तो नहीं। तो कर्ण अर्जुन के संवाद दुशासनवध ये कथा हम सुना रहे हैं। यदि किसी को दूसरा कथा में रुचि हो तो हमें बता दे, हम वहीं से शुरू कर लें। तो फिर चले कुरुक्षेत्र की तरफ। हम अकेले नहीं चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। जैसे भीष्म पितामह 10 दिन की लड़ाई करने के बाद पांचों भाई भांडोले खरोच आने नहीं दिया। हाँ भाई 5 दिन की लड़ाई गुरु द्रोणा भी किया। हाँ के वर्षा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बहाए। हाँ पर पांचों भाई पांडोले हाथ नहीं लगाए। हे दानवीर, हाँ आप भी 1 दिन की लड़ाई पार कर दिए हो। होगा मुझे पता नहीं कि ये पांडोले मारकर मुझे राज मिलेगा कि नहीं। सुना कर ना घायल होगे भाई, निर्दोषी हूँ, मुझे दोषी न ठहराइए। भले मेरा प्राण चले जाए तो चले जाए, पर वचन जाने नहीं। भाई गुस्सा के मारे कर्णदानी सेना के ओर जा बढ़े और बोले सुनो, घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ तैयारी करो। आगे आगे रथ मेरे चले, मेरे पीछे सारी सेना। जी राजा शल्य ने बोले मामा आप क्या देख रहे हो? हाँ भाई। शल्य बोले मैं क्या करूं भाई? हाँ भाई आप ही का इंतजार कर रहा था। यस। अरे बहुत जल्द से जल्द चल 4 घोड़ा सजाइए। आज बांधारी अर्जुन ने मारकर मुझे विजय दी। राजा शल्य कहे कमाल है करण, कमाल है। हाँ भाई आप कुरुक्षेत्र मैदान में जाओगे और
मूली के तरह अर्जुन को काट के आ जाओ। यही बात है ना जी। पर एक बात मेरे भी सुन लीजिए करण। सुनाइए। हाँ, अर्जुन सूर्य के समान है। अर्जुन के सामने छोटे से आप दीपक टमटमाएंगे नहीं। होश में आके बात कीजिए। हाँ। अर्जुन कोई साधारण नहीं जिसको जाओगे मार डालोगे। हाँ भाई। करण बोले मामा अब देर मत लगाओ। हाँ भाई। मेरा तैयारी करो। अच्छा। राजा शल्य चंचल 4 घोड़ा ने सजावे पकड़े हाथ में। कुरुक्षेत्र मैदान आ गए। होगा। आप भी देख लीजिए। हाँ, पांचों भाई पांडव सहित हाँ बाणधारी अर्जुन कहाँ है? हाँ भाई। मुझे मालूम है मामा। क्या? दीन दयाल दया के सागर मुरलीधर कन्हैया पता नहीं। हाँ। अर्जुन को कहाँ छुपा के रखे? डाला छोड़ी के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। चारा हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना। चारा हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। चारा हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना। चारा हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। डाला छोड़ के पाना गिरे देखो भूरिया बजी। अर्जुन आओ। चारों तरफ नजर लगा के देख। आओ भाई। अब कर्मा दादी ने चिल्ला के बोले पता नहीं अर्जुन है भी कहाँ। हाँ हाँ। कर्ण सोचे अर्जुन ने भगवान छुपाए भी है कहाँ। आओ। कैसे पता लगाया जाए? होगा। बोलो कैसे हाँ। राजा सल्ले बोले आप जानिए हम नहीं जाने। आओ भाई। तो कर्मा दादी चिल्ला के बोले अर्जुन कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। भीष्म पितामह गुरु द्रोण के हाथ से बच गए। हाँ। पर आज मेरे हाथ से बचना बहुत मुश्किल होगा। हाँ भाई। आपको बचाने के लिए वरुण कुबेर इंद्र भी आ जाए। हाँ। आपके प्राण बचना मुश्किल होगा। होगा। अर्जुन कहते करण के बड़बड़ाए की आदत पड़े। आओ। बड़बड़ाने तो हमें क्या। हाँ भाई आदत पड़ गए। पर भगवान कृष्ण के आँख घुमा कर रथ काले घना लागे भाई। काले घना लागे भाई। बोलिया के आगे आता है भाई। लगेगा भाई। भगवान कृष्ण जी घुमा के रथ अर्जुन कर्ण के आगे ले गए। आओ भाई। कर्णदानी
देख के अर्जुन ने चिल्लावे का बहुत देरी में आए हो अर्जुन। आओ भाई। अर्जुन कहे करण आप तो बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। हाँ हाँ उठाइए अपना धनुष लड़ाई करिए। आओ। राधा 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 मुझे भगवान कृष्ण से कुछ कहना है। कहो कहो क्या बात है? भगवान कहे बोलिए। हाँ हे कन्हैया हे गिरधारी आपके नाम अनेक है हाँ पर एक नाम है छलिया। हाँ सबके साथ आप छल कपट किए मेरे साथ छलना नहीं। आओगी। भगवान कहे ठीक है ठीक है। आओ। अब कुछ कहना है क्या? हाँ अब भी कुछ कहना है। कहो कहो। आप रथ चलाने में माहिर हो ना? हाँ हाँ किस तरीका रथ खिसका दोगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ हे प्रभु आप वैसे भी नहीं करना। हाँ भगवान कहे ठीक है भैया आपके वचन पालन करें। हाँ अब कुछ हाँ हाँ एक और है। क्या है? जब तक कि अर्जुन और मेरे साथ लड़ाई होती रहेगी हाँ आप अर्जुन को कोई राजा के पास नहीं ले जाना लड़वाने। अर्जुन कहे कमाल है करण। हाँ ये दिल्ली के पूरी रस्सी ला के भगवान को बांध दिया जाए ताकि उसको निकलते मत बने। ऐसे बता रहे हो वो नहीं करना वो नहीं करना। अरे लड़ाई करो बहानाबाजी करें कोई फायदा नहीं। हाँ करण बोले आप भी उठाइए। अर्जुन अपने गांधी रमोज बोले हाँ मैं भी उठाया। हाँ दोनों निकाले दोनों के निशाना एक समान रहेगा। अच्छा बहन करके जब बम छोड़ा आओ तब जल्दी छोड़ के भागो भैया भागो। अरे जरा भी बांध चुप के हमें लग गई तो गए हमारी जिंदगी चली जाएगी। दूसरा बोले कहाँ भागोगे? हाँ भाई आज नहीं तो कल मरोगे। मरोगे। राजा के राज में रहना है तो हाजी कहना है। यस जीना है नहीं तो मरना है। दो ही बात है भाई। हाँ भाई। कहाँ जाओ? अरे जाओगे भी कहाँ? हाँ दूसरा बोले एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या? अति इसी प्रकार दोनों दल में मती रहेगी लड़ाई। हाँ होने वाले पल्ले आजे ना हो जाए। हाँ हाँ दूसरा बोले आप पागल कर रहे हो पागल की तरह याद आओ। समझ नहीं रहे यहाँ जीत और हार की मामला। हाँ हाँ कैसे जीत होगी जी? हाँ अर्जुन के जब बाण चलती है तो भारत में मुर्दा के ढेर लगने लगता है। हाँ तो इसमें जीत होगी कि हार? दूसरा बोले भैया आओ। अरे जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है और कृष्ण है वहाँ विजय होने में सब देना है। आप भी देखिए हमें भी देखने दे। बड़बड़ाइए मत। ठीक है हमें क्या करना है? देखिए हमें भी देखना है। हम तो ज्यादा लड़ाई होगी ना तो हम तो विमान छोड़ के भगा जाएंगे। ये तरफ सब देवता चर्चा करते हैं अर्जुन और कर्ण के लड़ाई। दूसरा मोर भीम से उठावे हाथ। मेरे पास मूछ नहीं भीम के पास। लगा कर जाता भीम से लगे भैया।
अच्छा चारों तरफ से जब गदा घुमावे हो तो कौवा चिल्लावे बचाओ, अरे कोई है बचाओ। भीमसेन कहे बुलाओ, आओ बचाने वालों को मेरे सामने लाओ। आओ भाई मैं भी देख लूं। तो भीम के डर के मारे कौन जाए भैया? आओ नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है, भीम के आगे जाना मरना ही मरना है। हाँ क्या बताओ भाई, वही समय कर मेरा भाई मोर बोले भैया कहना बचन मोरा माना भाई अरे देखे के साला या भागेगा। कहना बचन मोरा माना भाई देखो सेना भागो रहे आओ भीम के फटकार में हाँ कौरव दल में खलबली मचे रहे। क्या बचाओ के अलावा कोई शब्द नहीं। आओ मोर बोले भैया कहना बचन मोरा माना भाई मोर भीग गेला आया करिए जया भैया भाई भीमसेन क्या मार में देख दुशासन के कान में सुनाइया। अच्छा दुशासन बोले हमारे कौरव दल में इतनी खलबली मची हुई है। हाँ क्या पांडव दल में कोई पहलवान आए हैं क्या? हाँ देसी है मतलब भीमसेन देशी है। हाँ पहलवान विदेशी और विदेशी होते हैं। यस यस अच्छा अच्छा, उसको देसी माने कैसे और विदेशी माने कैसे? माँ का दूध पीता है वो देसी है और जो बाटल का दूध पीता है वो विदेशी है। ए चाचा, ओए यहाँ बहुत से सारी महिलाएं हैं, हाँ ऐसे तेरे को तो बेचेगी ना तो किसी के नहीं रह पाओगे। कोई बात नहीं अम्मा। अरे आज के जमाना में फैशन है फैशन। हाँ हाँ बच्चों को पाउडर दूध पिलाना, बाटल पकड़ाना, हाँ इसलिए करते हैं वो लोग हाँ कि हम बच्चों को दूध पिलाएंगे हमारी फेस मारा जाएगी। हाँ ऐसे बात नहीं, बहुत गलत बात है। हाँ मैं खड़ी हूँ आपके सामने, प्रत्यक्ष प्रमाणित। मेरे तीनों बच्चों को मैंने अपने खुद ही दूध पिलाई हूँ, बाटल की नहीं। हाँ अब मेरे पास में नाती पोता छंती पंथी सब हो गए। और देखोगे ना, भले पैर नहीं चलता, हाँ। और जवान के जवान दिखाई देती हूँ। हाँ फेस नहीं मार तो भीमसेन के पास हाँ। दुशासन जब का बताओ भाई, वही समय कर मेरा मोर बोले भैया कैसे दुशासन बोल रहा भाई आज सारा दुशासन बोलेगा भीम बोले भैया सोया भैया मोर बातेला भाई दुशासन बोले भीम क्या है सेना के साथ लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं। आओ भाई यदि आपको लड़ना है तो मेरा साथ लड़िए। हाँ हाँ भीम अकेला नहीं था, होगा भीम एक नहीं दो जने सेना पछाड़े रहे मारने के लिए। हाँ और दुशासन जब बोले तो भीम मुड़ के देखा है। हाँ तीन बल्ले उठा के धक्का मार के कहो जाओ भाई। जाओ नाश्ता करके आना। आप क्यों? आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ भाई दुश्मन है वो मेरे पीछे। आओ अभी उठ के भी मैंने बोल रहा बोल बोले भैया कहना बचन मोरा माना भाई लागत या राजा बोल रहा भाई मोर बोले भैया वही समय कर मेरा भाई मोर मेरा घटे हटे काया बोलता भाई। बस बस दुशासन बस, ज्यादा आवाज देना उचित नहीं। हाँ भाई बोलो हमसे लड़ने आए हो, लड़ोगे? हाँ दुशासन बोले हाँ, मैं आपसे लड़ूंगा और आपको मारूंगा, अच्छा पर आपकी लड़ाई मेरे मन मुताबिक होगा। कैसे वो बोले कैसे लड़ोगे? आओ गदा बांध पर कस खड़ंग तलवार कुछ भी नहीं। हाँ ओ, तो फिर लड़ोगे कैसे भैया? कराटे से
कराटा से तेरे बाप को भेजना कराटा सिखाने के लिए चलेगी। वो जमाने में कराटा नहीं, अभी शुरू कराटा हुआ। तो दुशासन बोले मत। मलयुद्ध के बाद सुने तो भीमसेन हंसी आ गए। हाँ, क्या मैं मलयुद्ध में कमजोर हूँ? ताकि मेरे साथ मलयुद्ध करने के लिए दुशासन तैयारी हो रहे हैं। हाँ भाई, अपने आप को पहलवान समझ रखे हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, भीमसेन अपन गदा, दुशासन भी अपन गदा ले, सामने दोनों आके तब जंघा रे ठसाया दोनों भाई। दोनों भुजा मिलावे भाई, तब धक्की के धागे भैया मोरा दस पैरे आगे भैया, दस पैरे घुरावे और भीमसेन छाती में बैठ के दुशासन पकड़ के नकुल न कहे, नकुल जल्दी जा, रणवास हुए द्रौपदी पकड़ के कुरुक्षेत्र मैदान में ले आओ। नकुल भाई के बात लब रक्षा ना करे, बेचारा दौड़ा चले। हाँ, द्रौपदी ले कहे द्रौपदी, हाँ, और ये द्रौपदी दरवाजा, ओ आइए नकुल जी, आइए पधारिए। भूख लगी थी, हाँ, रोटी खाने आ गए। हाँ। अरे लड़ाई की जगह छोड़कर शर्म करो, मुझे बता दिया होता मैं रोटी के गट्ठा लेके आ जाती। अच्छा, मोबाइल कर दिए होते। द्रौपदी के जब बड़बड़ाना शुरू हो, हाँ, तो नकुल बेचारा बोक देखत रहे। बोलती बंद हो गई। नकुल कहे बोलती बंद नहीं हुई है, आप जल्दी जल्दी बोल रही हो ना, तो मुझे बोलने के लिए मौका नहीं मिल रहा। हाँ भाई, यदि आप बोलने के लिए मौका देगी, हाँ, तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, बोलो, मुंह फुलाए रहे। हाँ ठीक है, बोलो। तो नकुल कहे देवी, हाँ, मैं रोटी खाने नहीं आया हूँ। तो ना रोटी के गट्ठा लेने आया। किस लिए आए हो? मुझे भेजा गया। कौन भेजा गया? जी हाँ, मुझे भेजा गया है, वो भी गदाधारी भीम भैया। हाँ, गदाधारी भीम भैया। हाँ, तो द्रौपदी बोले किस लिए? मुझे ये भी बात नहीं बताए हैं, सिर्फ गदाधारी भीम भैया यही बोले हैं क्या कि मैं अपना प्रण पूरा करने जा रहा हूँ। हाँ, द्रौपदी से कह देना द्रौपदी अपना प्रण पूरा। समझ गई द्रौपदी? हाँ हाँ, अपन बिखरे बाल ले समेट के पकड़ के क्या करना थी? लेडीज फास्ट, क्योंकि लेडीज फास्ट है। ये अभी के जमाना में लेडीज फास्ट है, वो जमाना ही। भीमसेन पकड़े भुजा छाती में मड़ाए रहे, जमा के पैर ला। द्रौपदी चल के चिल्लावे, जय हो कुंती नंदन की, जय हो।
जय हो। जय हो गदाधारी भीम की जय हो। तो भीमसेन के ताकत के अंदाजा नहीं भैया, गोचे रहे वो तो पहला पूजा मारो लागे भाई। जब उखाड़ भुजा अधर फेंक देवे हाँ, तो दुशासन के बदले रक्त ऊपर गए। हाँ भाई, अब ऊपर जाके नीचे गिरत रहे, वो में द्रौपदी अपन एक एक केस ले समेट के गंगा समाना जैसा नादे करे दाई ना हवन लागे भाई, पकड़ का हवे हो जाया मेरा भाई, ना हवन लागे भैया फूले का धागे बोला हवेगा भाई, धोवन लागे भैया अपनो वाले हवेगा भाई। द्रौपदी के बरम देखने के लायक रहे। हाँ, कृष्ण जी घबरा गए। हाँ, अरे द्रौपदी मान गई तो मान गई, किसी के कहे में ना ध्यान दी। हाँ, हाथ में खड़ग और खप्पर लेकर हाँ, कौरव और पांडव दोनों दल में कूद गई। हाँ, तो सोच लो मुरी के तरह काट काट के खप्पर में भरा देगी। भगवान सोच रहे हाँ, मैं क्या करूं द्रौपदी। हाँ, तो मेरा काम अधूरा कर देगी। हाँ, यह वरन मुझे पहला देखना मिला। हाँ, अरे बाप रे बाप, मैं क्या करूं। हाँ, तो धीर से चिल्लाए। हाँ, अब ये द्रौपदी। द्रौपदी हाँ, लौट के देख गई। हाँ, क्या मैं ज्यादा परेशानी तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, द्रौपदी को हाँ, द्रौपदी अपना प्रण पूरा करने जा रही है। हाँ, द्रौपदी यही बात बोले रहे दुशासन। हाँ, यही तेरे हाथ था। हाँ, पकड़ के केस भले दरबार में लाकर नग्न किया। हाँ, यही तेरे हाथ था। मेरे बेटा या मनु का भेड़िया के तरफ कुचल के मारा, यही तेरा हाथ था ना। हाँ, जिस हाथ शरीर अधर होने के बाद हाँ, मुझे कितना दया आ रही है। हाँ, भगवान कृष्ण जी बार बार द्रौपदी ने चिल्लाए जा रहे हैं। हाँ, और द्रौपदी एक ही बात वर्णन कर रही है। होगा यही तेरा हाथ है। हाँ, यह हाल किया। हाँ, हाँ, यही तेरा हाथ है, मेरे आंचल पकड़ा। हाँ, यही तेरा हाथ है ना, मेरे बेटा अभिमन्यु को कुचल के मारा। हाँ, तब के दारी कृष्ण कहे अब ये द्रौपदी। तब द्रौपदी चौंक गई। कन्हैया आप? हाँ द्रौपदी हाँ, मैं आपको कई बार चिल्लाए जा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं आप कहाँ खो गई थी। हाँ भैया, बहुत दिन के बाद मेरे मन में खुशी की लहर आई। हाँ, 13 वर्ष के बिखरे बाल। हाँ, क्या बात है, स्टेज में तड़ातड़ मेरे तार टूटे जा रहा है। हाँ, 2 तार हो गए। हाँ, मैं बजा नहीं रही। हाँ, क्या बात है। भगवान कृष्ण कहे द्रौपदी हाँ, आप कुछ भी न कीजिए। हाँ, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जय जगदम्बे न प्रणाम, दुर्गा मैया न प्रणाम। जय जगदम्बे न प्रणाम, दुर्गा मैया न प्रणाम। जय जगदम्बे न प्रणाम, भोले बाबा न प्रणाम। जय जगदम्बे न प्रणाम, भोले बाबा न प्रणाम। जगदम्बे न प्रणाम, भोले बाबा न प्रणाम। जय जगदम्बे
आज यही की कथा यहीं तक समाप्त है। कभी याद करोगे तो हम दौड़े चले आएंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहला बार है स्टेज में तमूरा का तार टूट जाना। बनाते बनाते टूट जाती है, पर ऐसे चुपचाप पकड़ने से नहीं टूटा। पर चलो, माँ सरस्वती की कृपा, जिस तरीका होगा वही हो रहा है। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद विदुषी डॉक्टर तीजन बाई जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी हमें इस समय YouTube और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि ये अभी लगभग 1 घंटा 25 मिनट का ब्रेक है और हम दोबारा से लाइव होंगे अपने YouTube और Facebook चैनल पर ठीक शाम 6 बजे। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर एल सुब्रमण्यम 7 बजे से कर्नाटिक वायलिन पे, और उसके बाद 6 बजे से डॉक्टर एल सुब्रमण्यम हमारे साथ होंगे कर्नाटिक वायलिन पे, और उसके बाद 7:30 बजे से पंडित राजन एंड पंडित साजन मिश्रा हमारे साथ होंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे 6 बजे। धन्यवाद।